السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں امینہ زاہد۔ قصور میں خاتون سمیت 3 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں شہباز احمد کی اس رپورٹ میں۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ ایس ایچ او محمد اشفاق کی سربراہی میں کارروائی کے دوران خاتون سمیت 3 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 1300 گرام آئس اور 4.5 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کی شناخت عمران سکنہ ٹھولن چک نمبر 7، علی اکبر سکنہ واخارہ اور شکیلہ بی بی سکنہ کاشف چوک پتوکی کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان عرصہ دراز سے پتوکی اور گرد و نواح میں منشیات کے مکروہ دھندے سے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف امتناع منشیات کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قائم مقام ٹی پی او قصور محمد ضیاء الحق کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز احمد، نمائندہ اسپیشل ٹی وی، قصور۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں پولیس کی بڑی کارروائی، حافظہ والا سے ٹریکٹر ٹرالی چوری کرنے کا معاملہ۔ مزید جانتے ہیں رانا علیم سے۔ جی علیم، آگاہ کیجیے گا۔ پپلا پولیس کی بڑی کارروائی، پپلا کے نواحی چک نمبر 10 ML کے قریب پولیس مقابلہ۔ پپلا پولیس کو اطلاع ملی کہ 3 مسلح افراد مسروقہ ٹریکٹر ٹرالی پر چک نمبر 10 ML کی طرف آ رہے ہیں، جس پر SHO تھانہ پپلا ملک عبدالغفار چھاپہ مار ٹیم کے ہمراہ فوری طور پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوئے۔ پولی واونا مائرر چک نمبر 10 ML کے مقام پر ناکہ بندی کی گئی۔ پولیس کی ناکہ بندی کا سین دیکھتے ہوئے ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجہ میں ٹریکٹر ٹرالی چھوڑنے پر ملزمان مجبور ہو گئے۔ علاقہ کی ناکہ بندی کر کے جب سرچ آپریشن کیا گیا تو قریبی کھیتوں میں ایک زخمی حالت میں ایک شخص ملا، جس نے اپنا نام شاہ زیب سندہ بتلایا۔ معلوم ہوا کہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا ہے، جبکہ دوسرے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم تھانہ پپلا پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے مسروقہ ٹریکٹر ٹرالی اپنے قبضے میں لے لیا۔ جی لاہور پولیس بجلی چوروں کے خلاف سرگرم، ماہ مارچ کے دوران بجلی چوری میں ملوث 430 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال بجلی چوری میں ملوث 4220 افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا۔ بجلی چوری کے خلاف کارروائیوں میں 3960 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ CCPO لاہور بلال صدیقی میانہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملکی وسائل کو نقصان پہنچانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب پولیس کے لاہور سمیت صوبہ بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ کامبنگ آپریشن جاری۔ رواں سال کے دوران لاہور سمیت صوبہ بھر میں 352 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 13,967 افراد سے پوچھ گچھ، 99 جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ شرپسند و ملک دشمن عناصر کے قبضے سے 3 کلاشنکوف، 3 رائفل، 8 پسٹل برآمد کیے گئے۔ رواں سال کے دوران لاہور سمیت صوبہ بھر میں 36,139 کامبنگ آپریشن کیے گئے۔ کامبنگ آپریشن کے دوران 10,68,000 افراد سے پوچھ گچھ، 3,778 جرائم پیشہ و مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ جرائم پیشہ و مشتبہ افراد کے قبضے سے 37 کلاشنکوف، 77 رائفل، 714 پسٹل، 55 بندوقیں، 8 ریوالور اور بڑی تعداد میں گولیاں برآمد کی گئی۔ IG پنجاب عبدالکریم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر اور جرائم پیشہ عناصر کا محاسبہ کرنے کے لیے انٹیلیجنس بیس کامبنگ آپریشن جاری رکھے جائیں گے۔ SP کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ASP ڈیفنس بریرہ کی سربراہی میں فیکٹری ایریا میں پولیس کی کارروائیاں جاری۔ دوران پیٹرولنگ مختلف مقامات سے پتنگ بازی کرتے ہوئے 12 پتنگ باز موقع پر گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے پتنگیں اور قاتل کیمیکل ڈور برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ASP ڈیفنس بریرہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل ہے، تمام والدین اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھے۔ SP کینٹ اختر نواز کا کہنا ہے کہ پتنگ بازوں، پتنگ سازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کھڈیاں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ٹیچر اور زخمی بچوں کے گھر گاؤں دوست پورہ میں پہنچ گئے۔ مزید دیکھتے ہیں شہباز احمد کی اس رپورٹ میں۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वजीर ममलिकत मलक रशीद अहमद खान खुर्दियाँ ट्रैफिक हादसे में जांबहक खातून टीचर और ज़ख्मी बच्चों के घर दोस्तपुरा पहुँच गए। मरहुमा टीचर के वरसा ज़ख्मी रिक्शा ड्राइवर और बच्चों को इमदादी चेक्स दिए, वरसा से इजहार ताज़ियत और मरहुमा के लिए फातिहा ख्वानी की। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान और मलक रशीद अहमद खान ने दीगर ज़ख्मी बच्चों के घर उनकी जाकर अयादत की। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मरहुमा स्कूल टीचर के वरसा को 5 लाख रुपए, ज़ख्मी रिक्शा ड्राइवर और उसके 2 बच्चों को 3 लाख, जबकि बाकी ज़ख्मी बच्चियों को फ़ी कस 1-1 लाख रुपए के ज़ाती जेब से इमदादी चेक्स दिए। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि हादसा दिल खराश है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुश्किल की इस घड़ी में लवाहकीन मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे, मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, कसोर। चौक सरवर शहीद असिस्टेंट कमिश्नर जाम मोहम्मद असलम का इम्तहानी मराकज़ का अचानक दौरे के दौरान उन्होंने 10वीं जमात की जारी सालाना इम्तहानात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर इम्तहानी मराकज़ में सिक्योरिटी, शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तहानी अमल का बगौर मुशाहदा करते हुए तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतलका अमले को हिदायत जारी की कि इम्तहानात के इनकाद में मुकम्मल शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाए, जबकि नकल के खात्मे के लिए सख्त जारी रखे जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक साफ, शफाफ और मुनसिफाना इम्तहानी निज़ाम को यकीनी बनाना इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। फोर्ट अब्बास में चक नंबर 277 HR के करीब एक दिलखराश ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां नामालूम गाड़ी ने राह चलते मुसाफिर को कुचल डाला। हादसा इतना शदीद था कि शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। नवाई इलाके चक नंबर 239 R में जमीन के तनाज़े पर होने वाले झगड़े के दौरान एक नौजवान जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जाँ बहक शख्स के कज़न मुखालिफ फरीक के साथ जमीन की हदबंदी के तनाज़े पर मौजूद थे। तला कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। ऐनी शादीन के मुताबिक झगड़ा हाथापाई में तब्दील हो गया, जिसके दौरान मकतूल को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गए। अहले इलाका ने वाक़या पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जैकबाबाद सदर थाने की हदूद में नौजवान से मोटरसाइकिल की डकैती की वारदात। मुतासरा शख्स ने मोटरसाइकिल डकैती के खिलाफ एहतजाज कर दिया। मुसल्लह अफराद शख्स से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बोलान रोड बंद करके मोटरसाइकिल बरामदगी समेत मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हब बैरूट अकरम कॉलोनी में सियासी सरगर्मियों में नुमाया तेजी। रिंद हाउस में मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत जाकिर हुसैन की ज़ेर क़यादत एक और अहम अजलास मुनक़द हुआ, जिसमें इलाके को दरपेश संगीन मसाइल, सफाई की नाक़स सूरत हाल, पानी की किल्लत, सड़कों की हस्ताहाली और नकासी आब के मसाइल शामिल है पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जाकिर हुसैन ने अपने खिताब में मौजूदा क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में वाज़िया नाकामी नजर आ रही है। तरक्याती फंड के गैर शफाफ इस्तेमाल ने अवामी एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों को मजीद मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने और जल्द एक जामिया हिकमत अमली के तहत कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया। इजलास के अख्ताम पर शुरका ने इलाके की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद और हकूक के हसूल के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखने के आज़म का इआदा किया। SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली के सख्त इक़दामात बराए मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए थाना जैकबाबाद पुलिस की शानदार कामयाबी सामने आ गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नवाब अली। जी नवाब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर फैजान अली की सख्त अहकामात बराए मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए थाना आबाद पुलिस की शानदार कामयाब कार्रवाई सामने आई है। लाखों रुपए मालियत की मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। भारी मिकदार में 110 किलोग्राम मंशियात चेस रिकवर कर ली गई है। स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पुलिस कस्टडी करके कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। SHO थाना आबाद SIP सिकंदर अली चांडियो बीमा स्टाफ पुलिस ने खुफिया इतला पर गांव आचर बिरोई लाड़े के करीब गश्त के दौरान कामयाब कार्रवाई करते हुए एक लैंड क्रूजर गाड़ी रजिस्टर नंबर 2159
QBA سے بھاری مقدار میں اسمگلنگ شدہ 110 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان پولیس کو دیکھتے ہی گاڑی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ پولیس نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لے کر فوری تھانہ منتقل کر دیا ہے۔ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ جی خیرپور میں نیشنل ہائی وے پر افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں مزدا گاڑی بریک فیل ہونے کی وجہ سے بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ پولیس کے مطابق حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ مزدے میں مجموعی طور پر 11 مزدور سوار تھے۔ جاں بحق افراد میں مزدور اور اس کا 12 سالہ بیٹا بھی شامل ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اطلاع ملتے ہی پولیس اور موٹر وے حکام موقع پر پہنچ گئے اور فوری امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ گاڑی کو نہر سے نکال لیا گیا جبکہ لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، تاہم واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے گندم اور کنولا کی فصل کو شدید نقصان پہنچا کر کسانوں کی محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ مزید جانتے ہیں رانا علیم کی اس رپورٹ میں۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں طوفانی بارش اور طوفانی ہوا نے سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر کاشت گندم کی فصل برداشت کے موقع پر زمین بوس کر دی۔ علاوہ ازیں ہزاروں ایکڑ رقبہ پر کاشت کنولا کو بھی حالیہ بارشوں نے شدید نقصان پہنچایا، جس کے نتیجہ میں گندم کی پیداوار 50% اور کنولوں کی پیداوار 25% تک کم ہونے کی وجہ سے کسانوں نے سر پکڑ لیے۔ جی سول لائن ڈویژن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ خفیہ اطلاع پر 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ملزم کو کچا لارنس روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ دوران تلاشی ملزم سے 1020 گرام چرس برآمد کی گئی۔ ملزم کو ریگل چوک سے گرفتار کیا گیا۔ دوران تلاشی 180 گرام آئس بھی برآمد کی گئی۔ ملزمان پر مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور میں کرکٹ میلہ۔ لاہور پولیس کے افسران و جوان بہترین ڈیوٹی کے لیے پرعزم۔ پاکستان سپر لیگ کی 11ویں سیزن کے 7ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ پولیس لائن میں ریزرو نفری بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پر روزانہ کی بنیاد پر تعینات کی جا رہی ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز منزہ کرامت نے کرکٹ میچز کے لیے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران و جوان کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی۔ سفید پارچات پر بھی پولیس افسران و جوان سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران و جوان کو بروقت پوائنٹس پر کھانے کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خواتین پولیس افسران کو بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ سیف سٹی کیمروں، سی سی ٹی وی کیمروں سے اہم مقامات روٹس کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ ایس پی منزہ کرامت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک فرد یا اشیاء کے بارے میں فوری پولیس کو اطلاع دیں۔ لاہور پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ سمندری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لوگوں کو ان کی دہلیز پر سہولیات میسر کرنے کے لیے پولیس خدمت مرکز کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں دلبیر حسین کی اس رپورٹ میں۔ سمندری کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ شہریوں کی سہولت کے لیے سی پی او سہیل اختر اور آر پی او بلال عمر نے پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سمندری ماموں کنج مرید والا گرد و نواح کے شہری اس سے مستفید ہوں گے۔ اتنی دور شہر سے دور بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شہر کے وسط میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹس جو ہیں وہ ہیں اور یہ مین روڈ کے اوپر ہے، اور یہ ہمارے سی پی او فیصل آباد جو ہے بلال عمر صاحبزادہ، یہ ان کا آئیڈیا تھا اور میں یہاں پر آ کر اندازہ ہوا ہے کہ یہ بڑی اس کی ضرورت تھی۔ پبلک کنوینئنس جو ہے، لوگ یہاں سے فیصل آباد جاتے تھے اور بڑا دن ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضائع ہو جاتا تھا، تو اب یہاں پر تقریباً 15 کے قریب جو ہیں وہ یوٹیلیٹیز، جس میں ڈرائیورز لائسنس ہیں، انٹرنیشنل ڈرائیورز لائسنس ہے اور کریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں، اور جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یہ فیسلٹی کریٹ کی گئی ہے، تو اس میں مزید انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتری آتی جائے گی، اور میں اس ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ آئیڈیا پرسیو کیا اور لوگوں کی خدمت کے لیے اس کو مٹیریلائز کیا۔
पुलिस खिदमत मरकज में 15 से ज्यादा सहूलियत फराहम की जाएगी, जिसमें पुलिस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, व्हीकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकेगी। अब शहरियों को फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पुलिस खिदमत मरकज में ड्राइवर लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस की भी सहूलत होगी। पुलिस मरकज खिदमत के इनकाज से मुश्किलात कम होंगी। कैमरामैन टीम के हमरा दलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज समुंदरी। मुजफ्फरगढ़ में मौजा कीचक में दरियाए चनाब का खतरनाक कटाव, फौरी इक़दाम का मुतालबा। दरियाए चनाब में बढ़ता हुआ कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस करीबी आबादियाँ शदीद खतरे से दो चार हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक दरिया का बहाव मुसलसल ज़मीन को अपनी लपेट में ले रहा है। अगर फौरी हिफाजती इक़दाम ना किए गए तो कई घर और बस्तियाँ मज़ीद बर्बाद हो जाएंगी। अहलियान कीचक ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से DGP, DM, सेक्रेटरी इरीगेशन, कमिश्नर डेरा गाजी खां और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने की अपील कर दी। टंडू मोहम्मद जाम में यौम-ए हदाम जन्नतुल बकी के सिलसिले में मस्जिद अली से प्रेस क्लब की एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली से मौलाना अमीर हुसैन रहमानी, मौलाना जुल्करनैन, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा महमूदुल हसन, ISO के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अशरफ ने कहा कि यौम-ए हदाम जन्नतुल बकी तारीख़ इस्लाम का सियाद तरीन दिन है। अशवाल 1925 आले सऊद मिस्ल यहूद ने जन्नतुल बकी में खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, आयमा मासूमीन, अज़वाजे नबी के मज़ारात ये कहकर मसवार कर दिए कि ये बिदअत है। यौम-ए हदाम जन्नतुल बकी के मौका पर रानीपुर में मातमी और एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जो कायदे जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह की हिदायत के मुताबिक मुनाकिद किया गया। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की, जो बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर जन्नतुल बकी की मस्मार शुदा मज़ारात की फौरी दोबारा तामीर के मुतालबात दर्ज थे। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में आलमी बरादरी और मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उम्महातुल मोमिनीन और दीगर मुक़द्दस हस्तियों की मज़ारात की दोबारा तामीर यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जन्नतुल बकी में इस्लामी तारीख़, अक़ीदत और रूहानियत का एक अहम मरकज़ है, जिसकी बहाली पूरी उम्मत मुसलमान की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिबी बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई नाकाम। सिबी ढार सोरान में दहशतगर्दों ने शाहराह पर नाका लगाकर फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मुअस्सर कार्रवाई करते हुए इनका ताक़ुब किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मालटाउन डिवीजन पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने खुफिया इतला पर 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को जामे शेरी पार्क और सेंटर मैरी कॉलोनी से हिरासत में लिया गया। मुलजिम नशे के आदी अफराद को मंशियात फरोख्त करता था। मुलजमान से मजमूई तौर पर 2 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SP मालटाउन जहांदाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उमरकोट के पसमानदा इलाके UC गपना में कायम डिस्पेंसरी की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई। रैपर समाजी तंजीम के फोकल पर्सन कैसर अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PPAF के तावन से पहले फ़ाल मगर हस्ताहाल डिस्पेंसरी की दोबारा तामीर मुकम्मल कर ली गई। रैपर समाजी तंजीम के फोकल पर्सन कैसर अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PPAF के तावन से पहले फ़ाल मगर हस्ताहाल डिस्पेंसरी की मुकम्मल दोबारा तामीर की गई, जिसके तहत सेहत के बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरी में पानी की फ्राहमी के लिए वाटर टैंक, सोलर पंप, सोलर सिस्टम, वॉशरूम समेत दीगर जरूरी सहूलियात फ्राहम की गई, जिससे मकामी आबादी को बेहतर तिब्बी खिदमात मुयस्सर आएंगी। ये रैपिड की और PPAF की मेहरबानी है, जो हमारे गांव में अब्दुल हकीम गपना में इन्होंने हमारे पास मेडिकल डिस्पेंसरी ऑलरेडी वर्किंग में है, लेकिन उसमें कुछ रेनोवेट का काम था जो इन्होंने किया है माशाल्लाह, जिसमें सोलर सिस्टम है, कलर है और खिड़की वगैरह थी और भी छोटा मोटा काम था, वो उन्होंने माशाल्लाह तसल्ली बख्श काम किया है। सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, हम इनके शुक्रिया अदा करते हैं। जौहर टाउन पुलिस ने मुलजिमा खातून का नया तरीका वारदात बेनकाब कर दिया। मुलजिमा राइड बुक करके ड्राइवर्स को बातों में लगाकर नशावर चीज खिला पिलाकर बेहोश करती और मोबाइल वॉलेट से दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो जाती। पुलिस ने जदीद टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुलजिमा खातून तक रिसाई हासिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SP सदर अना हुसैन ताहिर का इस हवाले से कहना है कि ऐसे जुराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मोबाइल स्क्वाड सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 91 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान के मुताबिक मोबाइल स्क्वाड चेकिंग के दौरान 9 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को हिरासत में लिया गया। एसपी मोबाइल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद ने हिदायत जारी की कि नाजायज असला और मंशियात फरोश की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम जारी रखें। नाकाजात पर ई पुलिस ऐप की मदद से 40,244 से ज्यादा अशखास का रिकॉर्ड चेक करने के साथ दाखिली और खारजी रास्तों पर 4,967 से ज्यादा व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स को चेक किया गया। एसपी मोबाइल्स लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि नाकाजात पर इश्तहारियों, आदि मुलजमान, अदालती मफरूरान के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। समारू में वापटा की गफलत, खतरनाक बिजली के खंभे से हादसे का खदशा। समारू गांव में मेघवाड़ में बिजली का खंभा हसास हालत में अपनी जगह से हिल चुका है। खंभा किसी भी वक्त गिर कर जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद वापटा हुक्काम ने दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। इलाका मुक़ीनों के मुताबिक पहले भी करंट लगने से एक मवेशी और एक खातून जख्मी हो चुकी हैं। शहरियों ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मसला हल न होने पर अदालत से रुजू किया जाएगा। पाकपतन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत मवेशियों का बाड़ा बन गई। मजीद जानते हैं तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। खुले हुए जानवर, गोबर के ढेर, खिड़कियों के टूटे हुए शीशे, ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 93D की सरकारी बिल्डिंग, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, मगर इंतजामिया की बेहिसी के बायस अब ये इमारत मवेशियों का बाड़ा बन चुकी है। 600-700 बच्चे इस स्कूल पहले पढ़ते सी, हुण इस स्कूल ਨੂੰ महकमा तलीम ने खंडर बना छड़िया है। ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मरियम नवाज तवील है कि साडा स्कूल आबाद किया जाए। महकमा तलीम ने स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बंद करने के बाद इस कीमती सरकारी इमारत को काबजीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुकामी अफराद ने स्कूल में मवेशी बांधकर कब्जा कर लिया। 6-7 महीने हो गए ते स्कूल बंद है, इत्थे किसी तवज्जो ही नहीं दी, किसी मास्टर ने, किसी हैड मास्टर ने, ते जो भी बच्चे पढ़ते सी वो प्राइवेट चले गए, पर रोजी पूरी नहीं होती पई। मरियम नवाज गुजारिश है कि स्कूल चालू करा। मुकामी अफराद ने स्कूल के क्लासरूम को ताला लगाकर आलू और तूड़ी को स्टोर कर लिया। अहले इलाका का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर स्कूल में तलीमी सरगर्मियां बहाल करवाएं। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। थाना फरोजवाला के इलाका लबावाला में एक और हवा की बेटी जुल्म का शिकार। दरिंदा सिफ्त शख्स 15 साल लड़की को घर में अकेला पाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना दिया। मुबैना ज्यादती के बाद मुलजिम ने लड़की को तेज धार आले से गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस और फ्रांसिक टीमें मौका पर मौजूद हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। महकमा हाउसिंग पंजाब के तहत झेली इदारों का जायजा इजलास मुनाकिद। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने अहम इजलास की सदारत की। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मदीहा शाह और डिप्टी सेक्रेटरी मिर्जा वलीद बेग ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब ने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया और अहकामात जारी किए। उन्होंने हार्टिकल्चर, वासा, वाटर सप्लाई और दीगर अमूर के बारे में मुख्तलिफ सबरियों का बगौर जायजा लिया। हार्टिकल्चर एजेंसियों की मजीद इजला में तोसी का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत जारी की कि हार्टिकल्चर एजेंसियाँ बसरी आलूदगी के तदारक के लिए इकदाम उठाएं। मुतलका अफसरान तमीराती साइट्स पर हिफाजती SOPs का इतलाक यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने हिदायत की कि वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। काहना में घरेलू मुलाजिम की 4 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने छत पे ले जाकर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस की 15 कॉल पर कार्रवाई के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से SP मॉडल टाउन जहादाद अकरम का कहना है कि बच्चियों का इस्तेसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जेर सदारत लेस्को हेडक्वार्टर में ई कचहरी का इनेकाद किया गया। सार्फिन की शिकायत का फौरी असाला किया गया। ई कचहरी में सार्फिन ने ऑनलाइन अपने मसाइल पेश किए। चीफ एग्जीक्यूटिव की मौका पर मुतलका अफसरान को फौरी हल करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि लेस्को अफसरान और अमला सार्फिन से खुश अखलाकी से पेश आए और शिकायत के मुअस्सर अजाले को यकीनी बनाए। सार्फिन को मियारी बिजली की फराहमी और बर वक्त शिकायत के हल के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान का इस हवाले से कहना है कि कंप्लेंट सेल को मजीद फाल बनाया जाए, शिकायत के फौरी इंदराज और हल को यकीनी बनाया जाए।
पाकिस्तान पीपल पार्टी के सियासी और समाजी शख्सियत सखत ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन मीर अब्दुर्रहमान के एजाज में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब शुरू होने से पहले सिंध सकाफती रस्म के मुताबिक मेहमान खास को सिंधी टोपी और अजरक पहनाकर तकरीब का आगाज किया गया। अब्दुर्रहमान का इस हवाले से कहना है कि हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सख्ती से आवाम की खिदमत को यकीनी बनाने का हुक्म है। नुमाइंदों की अदम तवज्जुही से क़यादत पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आपस में इत्तेहाद से रहें और ग्रुप बंदी से परहेज करें। मुस्तफाबाद के इलाके कोट अली में मुर्दार गोश्त स्कैंडल का अफसोसनाक वाकया सामने आया। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफाबाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुर्दा भैंस ले जाने वाले ड्राइवर को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम मुर्दार गोश्त मार्केट में फरोख्त करने जा रहा था, जिससे इंसानी जानों को शदीद खतरा लाहक हो सकता था। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि ऐसे अनासर और इनकी पुष्ट पनाही करने वाले अफराद आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और DPO कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को मुज़र सेहत गोश्त से महफूज रखा जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।